नमस्कार ब्रेकिंग एट 10 AM को स्वागत करुछि म दीप्ति नजर पकाइबा वर्तमान समय हेडलाइंस उपरे। काबुल रे आत्मघाती विस्फोरण नेला 72 जीवन 12 अमेरिका सेना और 60 अफगान नागरिकों मृत्यु सब प्रकार गुइंदा सूचना सत्वे आईएसआईएस कला बड़ धरणर आतंकी हमला। एयरपोर्ट आतंकी को व्हाइट हाउस बाइडेन को चेतावनी कहले जेउठी थिले भी खोजी खोजी मारिबो कड़ा सुरक्षा बलय भितरे आज भी उद्धार कार्य जारी। ओडिशा चिकित्सा क्षेत्र में नुआ अध्याय आउ व्ययबहुल हेबनी एक्मो चिकित्सा बिना मूल्य रे गुरुतर रोगी को मिलिबो सुविधा एससीबी रे 9टी एक्मो यूनिट रो शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री। एसएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला 6 सप्ताह मध्य तदंत रिपोर्ट दियो राज्य जंगल विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और पुलिस डीजी को एनएचआरसी का निर्देश पारला पुलिस पर क्राइमब्रांच करुछि तदंत। लीड्स टेस्ट रे ड्राइवर सीट रे इंग्लैंड बोलिंग रे कमाल परे बैटिंग रे जादू द्वितीय दिन रे 345 रन आगरे विराट बाहिनी मैच बंचाई पारिबो कि सबुठु बड़ प्रश्न। आसवा विस्तृत खबर को आत्मघाती विस्फोरण नेला 72 जीवन काबुल एयरपोर्ट बाहर भयंकर सीरीज विस्फोरण घटना एथिरे 12 अमेरिका सेना और 60 अफगान नागरिकों मृत्यु होईछि 15 अमेरिकीय आहत होइथिबा पेंटागन पक्षरु सूचना मिलिछि प्राय 150 साधारण नागरिक गुरुतर आहत होइछन्ति मृत्यु संख्या बढ़िबा नै आशंका करा जाउछि तबे काबुल एयरपोर्ट रो आबे गेट पाखरे बहु लोक अपेक्षा करिथिबा बेले एही विस्फोरण होइतिला सीरीज आत्मघाती विस्फोरण पाई अफगानिस्तान रे कार्य करुथबा आईएसआईएस रो सहयोगी आतंकी संगठन आईएस कोराशान निजको दायी करिछि। Airport and in the vicinity of the Barron Hotel, which is immediately adjacent. The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces. At this time, we know that 12 U.S. service members have been killed in the attack, and 15 more service members have been injured. A number of Afghan civilians were also killed and injured in the attack. We are treating some of them aboard HKIA. Many other Afghan civilians have been taken out to hospitals in town. We're still working to calculate the total losses. We just don't know what that is right now. Their loss weighs heavily on us all, and I'll talk a little bit more about that as we go through my prepared remarks. We continue to focus on the protection of our forces and the evacuees as the evacuation continues. Let me be clear, while we're saddened by the loss of life, both U.S. and Afghan, we're continuing to execute the mission. Our mission is to evacuate U.S. citizens, third country nationals, special immigrant visa holders, U.S. Embassy staff, and Afghans at risk. काबुल रे विस्फोरण परे अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को कड़ा चेतावनी व्हाइट हाउस रु आईएसआईएस के को चेतावनी दैछंती बाइडेन आतंकवाद को केबे भी क्षमा दियाजिबो नाही ए आक्रमण को केबे भूलिबो नाही बोली कहिछंती बाइडेन आमे यार शिकार करिबु बोली चेतावनी दैछंती अमेरिका राष्ट्रपति मृत्युर क्षतिपूरण देबाकू हेबो अफगानिस्तान रु अमेरिका नागरिकों को बंचाइबु आमर मिशन जारी रहिबो विस्फोरण रे प्राण हराइथिबा अमेरिका सैनिक हिरो थिले अन्यमानक जीवन बंचाइबा पई निस्वार्थपरता भाबे काम करुथिले मृतकंक सम्मान रे अगस्त 30 जाय अमेरिका पताका अर्धनमित करा जायछि। A tough day. This evening in Kabul, as you all know, terrorists attacked that we've been talking about and worried about, that the intelligence community has assessed, has undertaken an attack by a group known as ISIS-K. Took the lives of American service members standing guard at the airport and wounded several others seriously. He had also wounded a number of civilians, and civilians were killed as well. I've been engaged all day in constant contact with the military commanders here in Washington and the Pentagon, as well as in Afghanistan and Doha. And my commanders here in Washington in the field
have been on this with great detail, and you've had a chance to speak to some so far. The situation on the ground is still evolving, and I'm constantly being updated. These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. They're a part of an airlift, an evacuation effort unlike any seen in history, with more than 100,000 American citizens, American partners, Afghans who helped us, and others taken to safety in the last 11 days. Just in the last 12 hours or so, another 7,000 have gotten out. They were part of the bravest, most capable, the most selfless military on the face of the earth. And they're part of simply what I call the backbone of America. They're the spine of America, the best the country has to offer. Jill and I, our hearts ache, like I'm sure all of you do as well, for all those Afghan families who lost loved ones, including small children, or been wounded in this vicious attack. And we're outraged as well as heartbroken. Being the father of an Army major who served for a year in Iraq, and before that was in Kosovo as a U.S. attorney for the better part of 6 months in the middle of a war. When he came home after a year in Iraq, he was diagnosed, like many, many coming home, with an aggressive and lethal cancer of the brain. We lost. We have some sense, like many of you do, what the families of these brave heroes are feeling today. You get this feeling like you're being sucked into a black hole in the middle of your chest. There's no way out. My heart aches for you. But I know this. We have a continuing obligation, a sacred obligation to all of you, families of those heroes. That obligation is not temporary, it lasts forever. The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America. Like their fellow brothers and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism, of the fall on this day, they're part of a great and noble company of American heroes. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. Over the past few weeks, I know many of you are probably tired of hearing me say it, we've been made aware by our intelligence community. समस्त गुइंदा सूचना सत्वे काबुल विमान बंदर रे हेला आतंकवादी हमला गतकाली दिन तमाम कहा जाउथला विमान बंदर रे बड़ धरणर आतंकवादी आक्रमण होई पारे जाकु नै अंतर्जातीय गणमाध्यम सूचना दैथिले। ब्रिटेन और अमेरिकार गुइंदा संस्था आक्रमण पूर्व सूचना दैथिले। सतर्क सूचना को 24 घंटा पूरी नथिबा बेले गुरुवार संध्या रे सीरीज विस्फोरण होइतला। काबुल एयरपोर्ट बाहर आतंकवादी हमला आशंका करी एयरपोर्ट गेट छाड़ी चली जिबाको परामर्श दिया जाइतला। तुरंत छाड़ी चली जिबाको काबुल रे थिबा अमेरिका दूतावास पक्षरु परामर्श दिया जाइतला। एहा सत्वे आत्मघाती आक्रमण को रोका जाई पारिला नाही। एमिति कि गत 20 तारिख रे बाइडेन कहिथिले जे काबुल विमान बंदर निकट रे आतंकवादी आक्रमण करि पारंती। कोनोसी प्रकार संभाव्य आक्रमण घटना उपरे नजर रखा जाइथिबा कहिथिले जो बाइडेन।
अधिक आलोचना करबा संपर्क में आलोचना पाई आम सहित फोन लाइन रहउछंती ब्रिगेडियर गिरिजा प्रसाद पाणिग्राही रहउछंती। ब्रिगेडियर पाणिग्राही स्वागत करबे आपण को आलोचना को कलिंग टीवी को। वर्तमान जो भली भाबरे आतंकवादी आक्रमण होईछि हमला होईछि पूर्वरु एने सतर्क सूचना दिया जाइतला समस्ते अलर्ट थिले एथिपाई तथापि याकू रोका जाई पारला नाही किभଳି देखुछंती आपण याकू। देखो जिमती सिचुएशन चली अफगानिस्तान रे और जहाँ टीवी फुटेज मिलूँ से कहार कंट्रोल रे नहीं आज्ञा भीतरटा रहा एयरपोर्ट भीतर रहा यूएस कंट्रोल रे और बाहर रहा तालिबान कंट्रोल रे और बाहर जो सिचुएशन देखुंती लक्ष लक्ष लोक बाहर आसी ठिया केमती भीतर को पशे केमती आम ये देश छाड़ी चली जीवु से परिस्थिति रे जो ये तालिबान फोर्सेस अच्छी से माने कौन सी जिनस कंट्रोल कर पाना इन दी बागेन आमको खबर आसला परे भी कि आमको वार्निंग आसला परे भी कि आतंकवादी अटैक हो पारे सेटा कहीं रोका जाई पारानी जेहेतु आतंकवादी जो आईएस ग्रुप अटैक करिला सी भाभी चिंती करी जो मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज रो सोल्जर्स अच्छी से जगह अटैक करने को चेष्टा कला सेटा हूँ गोटे कारण जो थे से अमेरिका स्पेशली बहुत गुड़ा लॉस देखा पड़ा 14 जन रु 16 जन प्राय अमेरिकन सोल्जर्स मरीगले और प्राय 8-10 जन मैंने इंजोर्ड भी होती एंड बहुत गुड़ा सिविलियन जो इंजोर्ड होती और से दृष्टि देखा गले एक्चुअली बर्तमान अफगानिस्तान इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल आउट यूएसए विड्रो सिना करिला प्रॉपर्ली प्लानिंग करि पारनी प्रॉपर्ली देखी पारनी कि भाभी पारनी कि आगो को कौन हो पारिबो और से अनुसार से असुविधा गुड़ा को ब्लॉक करके आगो को जमती बढ़ी पड़ता बर्तमान से सिचुएशन ऊपर एक्ट करछि कि जमती चाहिबो सेमती करबा पे आज्ञा निहाती भाव में 62 जनक जीवन नहीं ये आत्मघाती विस्फोरण निहाती भाव में परिस्थिति गोटे प्रकार उद्वेगजनक भी रही बहुत बहुत धन्यवाद आपको ब्रिगेडियर गिरिजा प्रसाद पाणिग्राही आम सहित विस्तृत भाव में आलोचना करते संपर्क में। आज कटक बड़ मेडिकल रे आरंभ हेबो एक्मो चिकित्सा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज कटक गस्तरे आसी यार शुभारंभ करेंगे 9टी एक्मो मेसिन उद्घाटन हेबो पूर्व भारत में सरकारी भाव एक्मो चिकित्सा कुआ यह सबुठारु बड़ यूनिट हेबो एक्मो चिकित्सा बाबद रे डाक्तर और पारामेडिकल कर्मचारी ट्रेनिंग नहीं सारी मुख्यमंत्री गस्त पूर्व एससीबी मेडिकल कॉलेज रे स्थिति परखिछंती कटक जिलापाल और डीसीपी पूर्व एक्मो चिकित्सा पाई रोगी माननकु एयर एम्बुलेंस रे राज्य बाहर को जीवाकु पड़ुथला याकु दृष्टि रखी राज्य सरकार एससीबी रे एही चिकित्सा व्यवस्था करिछते। अधिक सूचना पाई सीधासलख कटक आम सहित जोड़ी होती आम जोनाल हेड विभूति साहू जोड़ी होती विभूति कहीपर आज दिन गोटे गुरुत्वपूर्ण दिन रोचे आ सहित ओडिशा चिकित्सा क्षेत्र में ये गोटे नुआ अध्याय विभूति निश्चित रूपे दीप्ति ओडिशा चिकित्सा इतिहास रे गोटे नुआ अध्याय आज जोड़िया जाऊँगी एक्मो चिकित्सा एससीबी आरंभ हम ये मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 12टा बेले आसी पहुंची उद्घाटन करेंगे ए संपर्क में आलोचना करवा एससीबी प्रशासनिक अधिकारी कल्पतरु बेहरा आम सहित अच्छा सर आलोचना को स्वागत करुच्ची एससीबी मेडिकल पूर्व भारत कहीं भारत वर्ष में एकमात्र हॉस्पिटल जी कि राज्य सरकार उद्यम रे गोटे इक्मो सेवा आरंभ होची केते इक्मो मेसीन अच्छी एवं कौन सब व्यवस्था एससीबी तरफ ओडिशा रे कोविड चिकित्सार यहाँ हूँ गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप आगु आमर यही व्यवस्था जेहेतु नाला आमर ओडिशार रोगी मान बाहर राज्य को एनिमते चिकित्सा करने पठा जाऊला माननीय मुख्यमंत्री यही असुविधा उपलब्धि करी समग्र ओडिशावासी स्वार्थ दृष्टि पूर्व भारत में यहाँ 9 टिकिया गोटे इक्मो व्यवस्था एससीबी मेडिकल कॉलेज रे करिसेंती आज सेटा से लोकार्पण करिवार प्रोग्राम रही याद्वारा ओडिशार जो रोगी माने गुरुतर रोगी माने जो माने अन्य राज्य चिकित्सा निमंते जाउथिले आ जीवाको पड़िबो नाही एथिपाई जो मानव संबल आवश्यकता अच्छी सेटा आम रिक्रुटमेंट हो जाइए से उपयुक्त ट्रेनिंग कोलकाता रे दिया जाइए तेणु आज निहाती आम एटा गोटे शुभ मुहूर्तर सरकारी व्यय खर्च हम कौन हाँ समस्त व्यवस्था सरकारी उद्यम होती
ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମେ ଇକ୍ମୋ ସେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଏଇଠି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଚିକିତ୍ସା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବିରେ ସେହି ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପରେ ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ। ଆଉ ଏକ୍ମୋ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ପୋରିଆଲ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏସ୍ସିବିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଦୀପ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସେବା ଯାହାକି ରୋଗୀର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା एकमात्र सेवा निहाती भाବରେ या द्वारा अनेक रोगी आमे कहि परिबा ओडिसार उपकृत होई परिबे एवं ये गोटे ओडिसा चिकित्सा क्षेत्र रे गोटे नुआ अध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपनको कटक जोनल हेड विभूति साहू विस्तृत भाବରେ हमको ए संपर्क रे सूचना दउथले। राज्य में गत 24 घंटे 816 नुआ संक्रमित चिन्हट मान भितर 0 ରୁ 18 वर्ष भितर अच्छा 106 जन आउ 69 कोरोना आक्रांत मृत्यु होईछि। खोर्धारू सर्वाधिक 291 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। कटकरू 116 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। अन्य समस्त जिले में 100 तले रही संक्रमण। 24 घंटे 69,585 कोविड टेस्टिंग होइछि। पॉजिटिविटी रेट रही 1.17%। एबे एक्टिव केस रही 8,271। एसएएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला रे 6 सप्ताह मध्य तदंत रिपोर्ट देवाकू निर्देश। जातीय मानवाधिकार कमिशन एही निर्देश दैछन्ते। राज्य जंगल विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और पुलिस डीजी को तदंत रिपोर्ट देवाकू निर्देश देथिबा सूचना मिली। प्रथमे एही मामलार तदंत पारलाखेमुंडी पुलिस करुवा बेले परवर्ती समय तदंत दायित्व क्राइम ब्रांच को हस्तांतर करा 8 दिन धरी प्राय 15 जन को जेरा करी बयान रेकर्ड करिछि क्राइम ब्रांच टीम। सौम्य मृत्यु को 44 दिन बीती जाइथिले मध्य एपर्यंत रहस्य उन्मोचित होई नाही। तेणु एही मामलार उच्चस्तरीय तदंत पाई जणे मानवाधिकार कर्मी एनएचआरसी निकट में गत 3 तारिख में अभियोग करथिले। एथिरे जातीय मानवाधिकार कमिशन मामला रुजु करी एक्शन टेक इन रिपोर्ट मागिछन्ते। 6 सप्ताह मध्य घटनार सविशेष रिपोर्ट प्रदान पाई कमिशन निर्देश दैछन्ते। पुलिस ठीक भाव में इन्वेस्टिगेशन करूनी। प्रथम जो एतला से रेजिस्ट्रेशन करिसेंती से एतला रे से केवल 302 रखिसेंती आ कोन सी 3 जन को ना रे रेजिस्ट्री करछेंती किंतु अलगा दफा किछि लगै नांती। 34 आईपीसी किबा 149 आईपीसी लागिवा कथा जेहेतु 3 जन अभियुक्त अछंती ता देरे से सब सेगुडा सब किछि लगै नांती। तापर इन्वेस्टिगेशन तांको बापा मां को कहबा मुताबिक से इन्वेस्टिगेशन किसी करूना। से देखिली जेहेतु मु भारतीय विकास परिषद जगतसिंहपुर जिला सभापति अच्छी से देखिली जे इथिरे पुलिस ठीक भाव में इन्वेस्टिगेशन करूनी किंबा क्राइम ब्रांच ठीक भाव में इन्वेस्टिगेशन करूनी। से मु केंद्र मानव अधिकार कमिशन रे पिटिशन दाखल करथिली। सिथिरे मो दरखास्त रे दर्शैथिली जे एटा एनएचआरसी इन्वेस्टिगेशन कले आर सविशेष विवरणी मिल पार। एडिशनल मुख्य शासन सचिव जंगल विभाग आ पुलिस डीजी को ऑर्डर करछन्ती जे तुरंत आर स्टेटस रिपोर्ट दाखल कले एनएचआरसी पदुए इन्वेस्टिगेशन करिवो। ता परवर्ती ऑर्डर किछि जना पड़िवो। तापर मते भी गोटे निर्देश आछि ह्यूमन राइट्स कमिशन रु परवर्ती समय रे ता 2 दिन पर गोटे चिठी आइछि। काली बोधे संध्या बेले आइछि। आपणकर जदि सौम्य महापात्र रिलेटेड रे किछि वीडियो ऑडियो आ किछि कागज पत्र अछि ताले आपण भी पैठ करि परिबे। सबरे अधिक सूचना पाई सीधासलख आम सहित जोड़ी होती दिल्ली ब्यूरो चीफ आशुतोष राउत जोड़ी होती। आशुतोष ये जो जातीय मानवाधिकार कमिशन निर्देश देइछन्ती जे 6 सप्ताह मध्य तदंत रिपोर्ट देबा पई ए संपर्क में विस्तृत भाव में कौन सूचना सामना को आसी पारुछि आशुतोष? देखो जो भली भाव में एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र केस सेठी तदंत चली
प्रथमे ओडिशा पुलिस करिथिला एवं तापरे क्राइम ब्रांच तरफ जो भली भाव में तदंत चली एवं तारि भितरे 14 जन को पचरा उचरा सरिलानी से डॉक्टर हुंतु गुरांटी थानार ऑफिसर्स हुंतु बा डीएफओ हुंतु बा रिलेटेड जेतक अछंती सेठी जो भली भाव में पचरा उचरा सरी मानवाधिकार कमिशन निश्चिंत भाव में सिचुएशन ये जो केस टी होती एटी गंभीरतार सहित नहीं 6 सप्ताह भितरे एक्शन टेकन रिपोर्ट देवाकू कुहा जाइछि पुलिस डीजी को एवं जंगल विभाग जे अछंती एडिशनल सेक्रेटरी से दृष्टि देखा गले निश्चित भाव में एसीएफ मामला एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला वर्तमान जेतबले जातीय मानवाधिकार कमिशन को पाखे पहुँची एवं 6 सप्ताह भितर तार एक्शन टेकन रिपोर्ट तार भितर आप जानिथिबे क्राइम ब्रांच तरफ जो भली भाव में तदंत करा जाइछि एवं जो भली भाव में डीएफओ को पचरा उचरा करा जाइछि गुरांटी थानार आईआईसी को पचरा उचरा करा जाइछि 2 जन डॉक्टर को पचरा उचरा करा जाइछि एवं टोटाल 14 जन को पचरा उचरा पर निश्चित भाव में जितेबले यही मानवाधिकार कर्मी आसी मानवाधिकार कमिशन को पाखक से निश्चित भाव में गंभीरतार सहित नहीं एनएचआरसी तरफ गोटे एक्शन टेकन रिपोर्ट कौन कौन वर्तमान सुधा तदंत होती कौन कौन क्या पचरा उचरा होती मामलें कौ जाए अग्रगति करिछि तदंत ता उपरे गोटे एक्शन टेकन रिपोर्ट दबाकू कुहा जाइछि ऑफिशियल्स मानकू एवं तार रिपोर्ट पाई सारला परे निश्चित भाव में जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन अच्छी से तांकर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन से तांकर जनइबे किंतु वर्तमान एसीएफ मृत्यु मामलाटी एनएचआरसी को आसीबा एवं एनएचआरसी तरफ एटीआर मागिबा एटी निश्चित भाव में गोटे बड़ खबर बोली आमे कहि परिबा एवं क्राइम ब्रांच जो भली भाव में तदंत करूची सत्यासत्य निश्चित भाव में सामना को बहुत जल्दी आसीबो एनएचआरसी सत्यासत्य खूब शीघ्र सामना को आसीबो एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट जो भली भाव में निर्देश दिया जाइछि 6 सप्ताह मध्य देवा को निर्देश दैछंती जातीय मानवाधिकार कमिशन निहाती भाव में ये गोटे बड़ डेवलपमेंट रोची खबर बहुत बहुत धन्यवाद आपको आशुतोष राउत दिल्ली ब्यूरो चीफ तमाम सूचना दोतले हमको ए दिगरे आज बसुछि सर्वदलीय बैठक दिन 11टारे बाचस्पति अध्यक्षतार बसिब सर्वदलीय बैठक सेप्टेम्बर 1 तारिखर आरंभ होगाकू जाउछि विधानसभा मौसुमी अधिवेशन এই अधिवेशन गृह किभଳି सुरखुरी चलिबो ताहा उपरे बैठक रे गुरुत्व दिया जिवो तेबे कोविड कटकड़ा भितर विधानसभा बसिबो एथर मध्य विधानसभा पूर्व समस्तंकर हेबो कोविड टेस्ट राज्य रे एबे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रहिछि तनु छोटिया अधिवेशन होइतले मध्य अधिवेशन बेस सरगरम हेबो बोली कुहा जाउछि सेप्टेम्बर 9 तारिख जाय अधिवेशन चलिबो चलित अधिवेशन रे रहिबो 8टी कार्य दिवस आज राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार संध्यार बसिब बैठक किछि गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे लागिपारे मोहर बैठक रे प्राय 9टी अधिक प्रस्ताव आसीपारे फोकस रे रहिपारे पंचायती राज निर्वाचन रे आसन संरक्षण नै प्रस्ताव ई जान प्रस्ताव उपरे मध्य आलोचना हेबार संभावना रही स्वास्थ्य विभाग डाक्तरों क्याडर पुनर्गठन करा जिबा पई मध्य प्रस्ताव आसीपारे आसवा खेल खबर को तृतीय टेस्ट रे ड्राइवर सीट रे इंग्लैंड निजर स्थिति मजबूत करिछि इंग्लैंड भल फॉर्म दे गति करुथबा कैप्टेन जो रूट को लगातार तृतीय शतक समेत आग धाड़ीर 4 बैट्समैन को विस्फोरक बैटिंग बल रे तृतीय टेस्ट रे स्थिति मजबूत करिछि इंग्लैंड 2 दिन खेल रे 8टी विकेट हराई 432 रन करिछि फल रे भारत ठारू 345 रन रे अग्रणी रहिछि जोरूट भारतीय बोलर को प्रहार करिछन्ते से 165 बॉल खेली 14टी चौका सहायता शतक हासिल करथिबा रोरी 161 हशीम हमीद 68 और डेविड मलान 70 रन संग्रह करबा परे इंग्लैंड प्रथम पाली रे मजबूत स्थिति रे रहिछि एबे तृतीय टेस्ट रे विराट बाहिनी मैच बंचाई पारिबो कि नाही सेने बड़ प्रश्नवाची वर्तमान सृष्टि होइछि बैट्समैन मानकर जो भाया प्रदर्शन करिसेंती सेटा गोटे बहुत बड़ माने अचीवमेंट तांको पई काहेकि ना द्वितीय टेस्ट हारी थिले एवं तृतीय टेस्ट रे प्रथम पाली रे भारतीय दल को 78 रन ऑल आउट करी 345 रन अग्रणी लाभ करछन एवं आउरी बाकी अछि 3 दिन किंतु कथा होची जे सेमानकर बैटिंग और आम बैटिंग भीतर जदि कंपैरिजन करिवे तांकर जो माने टॉप ऑर्डर फेल करथिले एई मैच रे सेमाने सक्सेस हेतिले एवं जो रूटर जो दमदार फॉर्म रे अछंती एवं केमिति लगातार शतक जेतले टेस्ट रे करिसेंती सेटा गोटे तांको पई लाइफ टाइम बहुत बड़ अचीवमेंट एवं तांको जीवन रे मो भाबुची एटा गोटे सबुठ भलो फॉर्म रे थिबा समय
ଏବଂ ଯୋଉ ରୁଟ୍ ୱିକେଟ୍ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଏତେ ବଡ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗି ରଖି ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 3 ଦିନ କେମିତି କାଟିବା ଏବଂ ଡ୍ର ଆଡକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯିବ ସେଇ ବୋଧେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଥିବ। समस्त बुलेटिन को ये रखुछु अधिक खबर अपडेट पाई आपण आम सोशल मीडिया साइट को जाई देखि परिबे www.kalingatv.com कलिंग टीवी ट्विटर यूट्यूब फेसबुक सह आपण माने अपडेट बनतु। नमस्कार।